Hello everyone, a warm welcome to today's video lecture. I hope you all are doing fine and staying safe at your homes. And we hope to meet soon. And until then, we will continue with the classes. So, in the last two lectures, we had done the chapter Should Wizard Hit Mommy by John Updike. We had done a line by line explanation of the text of the chapter. And today we will do a quick discussion of the question answers given towards the end of the chapter on page number 55 of your book Vistas. So, the first question says, what is the moral issue that the story raises? So, after reading the complete story, we find that the most prominent moral issue that this story has raised is whether the wizard should hit mommy or not. And whose mommy is being referred to here? Roger Skunk's mommy. Okay. So the moral issue is whether the mother of Roger Skunk should be hit by the wizard or not. And if not, then what is the other probable ending? That the mother should hit the wizard. So this morality that has been put together over here in a very complex manner is the issue that this story raises. Because mother, as we all know, is a respectable person. And not only in our country, India, mothers are respected, but also throughout the world. सो दुनिया के किसी भी कल्चर को आप देख लीजिए, वहाँ पे मदर की रिस्पेक्ट करने के लिए कहा जाता है. ओके, सो अ मदर इज अ रिस्पेक्टेबल पर्सन जो पूरे दुनिया के कल्चर्स में है ये प्रेवलेंट. एंड सो इवन जैक इज टेलिंग हिज डॉटर दैट इट वाज द विजार्ड हु वाज हिट एंड नॉट द मदर. सो दिस is something which the girl doesn't like. Little Joe doesn't like this ending to the story. Why? Because as a little child, she doesn't have much experience of the world. उसने दुनिया ज़्यादा नहीं देखी है. And she doesn't know that मम्मी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. Okay, what is more concerned in her mind, more concern is whether Roger Skunk is happy or not, whether he is being able to play with his friends or not, whether his friends are running away from him or not. Okay, so because she is of the same age as that of Roger Skunk maybe, or because she is also a child, जैसे कि वो एक छोटी बच्ची है, उसी तरह Roger Skunk भी उसको लगता है कि उसी के एज ग्रुप का है. Okay, so she identifies with Roger Skunk more than any other character, more than the wizard, more than the mother skunk. Okay, so यहाँ पे जो है वो अपने एज ग्रुप के कैरेक्टर के साथ ज़्यादा एसोसिएट करी है एंड वो उसके वेलफेयर के बारे में ज़्यादा सोच रही है. शी इज़ वेरी इनोसेंट. शी इज़ अ 4-year-old girl and she is very very innocent, and her ending of the story, the kind of end that she wants, also tells us that she is completely innocent and she doesn't have these ideas about respect and values and morality. ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़े लोगों को गाइड करती हैं ज़्यादा. Okay, because they have seen the world, they know what the society demands, what people demand. Okay, what is respect and everything. And little children, as they grow in experience, they learn things. But when we are young, we don't really have that kind of respect that we have when we grow up. Okay, so this is the moral issue that the story raises, whether the mother should be hit or she should not be hit. Okay, so from the child's perspective, it is correct to hit her. Okay, and from the father's perspective, it is not. So this is the main moral issue that the story is raising. Okay, now moving on to question number 2. How does Joe want the story to end and why? So we all know how Joe wants the story to end. She simply wants that instead of the mother hitting the wizard with the umbrella, it should be the other way around. कि mother जो है वो wizard को ना मारे, जबकि wizard जो है वो मदर को हिट करे. Why? Because she likes the smell of Roger Skunk
द न्यू स्मेल, द स्मेल ऑफ रोजेस, ओके, क्योंकि ऐसी स्मेल से उससे कोई भागता नहीं है, उसके सारे फ्रेंड्स उसके साथ खेलते हैं, सो शी लाइक्स दैट। और उसको उसकी मम्मी का डिसीजन, रॉजर स्कंक की मदर का डिसीजन जो है जो को अच्छा नहीं लगता, एंड शी सेज दैट दैट वाज अ स्टूपिड मॉमी, बिकॉज शी शुडंट हैव डन दैट, बिकॉज इट वाज ऑल अ वेरी हैप्पी एंडिंग फॉर हर, कि he was allowed to play with his friends and everything was very happy in the end, so she was very much satisfied। और जब वैसा नहीं होता है, so she is not at all satisfied or convinced, so that is how she wants the story to end। And why? Because of that same reason, because she identifies with Roger Skunk more than that of any other character, okay? So moving on to question 3, why does Jack insist that it was the wizard that was hit and not the mother? नाउ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में हम जो के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में हम जैक के पर्सपेक्टिव को देखेंगे। जैक हु इज द फादर ऑफ जो। सो व्हाट इज जैक इंसिस्टिंग? वो बार बार क्या इंसिस्ट कर रहे हैं? दैट इट वाज द विजार्ड हु वाज हिट एंड नॉट द मदर स्कंक, बिकॉज वो एक एक्सपीरियंस्ड आदमी है, ही इज अ पेरेंट एंड ही नोज दैट अ मदर इज अ रिस्पेक्टेबल पर्सन, जिसको हमेशा रिस्पेक्ट से ट्रीट करना चाहिए, जिसके सामने हमेशा पोलाइट होना चाहिए, जिनकी बातें माननी चाहिए। सो ही हैज सीन द वर्ल्ड एंड द सोसाइटी इन विच ही इज लिविंग, and he knows that a mother is a respectable person, be it his mother or anyone's mother or even Joe's mother, okay? So all these ladies are someone who deserve respect, so he wants this एंडिंग टू द स्टोरी जिसमें वो बच्चे को कोई अच्छा लेसन दे, कोई अच्छा मॉरल लेसन दे पाए, ओके, एंड नो रॉन्ग मैसेज इज कम्युनिकेटेड टू हर। सो वो बार बार क्या इंसिस्ट करते हैं? दैट इट वॉज द विजर्ड दैट वॉज हिट, बिकॉज द मदर फेल्ट दैट उसके बेबी का जो भी स्मेल था दैट वॉज कम्प्लीटली फाइन, एंड द मदर इज ऑलवेज राइट एंड शी नोज द बेस्ट फॉर हर चाइल्ड। सो दिस वॉज जैक्स इंसिस्टेंस दैट मदर स्कंक का डिसीजन बिल्कुल सही था, एंड इट वॉज द विजार्ड हु वॉज हिट बाय हर, ओके? सो moving to question number 4, what makes Jack feel caught in an ugly middle position? Now this is an important question, और ये part बिल्कुल towards the end of the chapter आता है। We see that the writer is telling us that he finds himself in an ugly middle position, and though he as well felt his wife's presence in the cage with him, he did not want to speak with her, work with her, touch her, anything. So this is the last paragraph of the chapter. So basically what makes Jack feel caught in an ugly middle position? अब ये जो middle stance, ये जो middle position है जिसमें Jack खुद को find करते हैं, like he feels this is a sort of a cage जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे। So ये क्या position है? This is the position between a parent and a child. वो एक parent भी है and he is also someone's child, okay? So when he thinks from the adult point of view, उनको one end of the story सही लगती है, and when he thinks of the from the child's point of view, तो उनको दूसरी ending सही लगती है। But being an adult, okay, he has to take the adult's version of the story, because we live in a world in which the adult perspectives matter. अडल्ट के जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं वही दुनिया को चलाते हैं, वही रीति रिवाज जो हैं उन्हीं को हम फॉलो करके अपनी लाइफ को गुजारते हैं। सो दिस पर्सपेक्टिव इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू जैक, ओके? सो वो उसी से स्टिक करते हैं टुवर्ड्स द एंड, एकदम एंड तक वो अपनी बेटी की बात को नहीं मानते हैं। वाई? बिकॉज ही नोज दैट इज जस्ट अ चाइल्डिश थिंग दैट शी इज सेइंग, और वो भी जब बड़ी हो जाएगी तो वो भी वैसे ही सोचेगी जैसे कि ये सोच रहे हैं। बट स्टिल द पोजिशन इन विच ही इज, वो खुश नहीं है, एंड इट इज़ अ वेरी अगली सिचुएशन फॉर हिम, बिकॉज एक तरफ उनकी वाइफ है एंड एट द अदर साइड देयर इज द डॉटर दैट इज लिटिल जो। तो वो अपनी वाइफ को भी खुश रखना चाहते हैं, एंड ही ऑल्सो वॉन्ट्स to satisfy little Joe, to tell her stories which satisfy her and makes her happy. But in the end of the story we see that he is not able to satisfy either of them.
ठीक है। तो उनकी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है कि वो जल्दी से स्टोरी सुना के आएंगे और उनके साथ उनको हेल्प करेंगे, और उनको स्टोरी सुनाने में लेट हो जाती है। ओके, सो व्हेन ही कम शी आस्क्ड दैट इट वाज इंडीड अ लॉन्ग स्टोरी, सो ही मेक सम एक्सक्यूज। ओके, सो दिस इज हाउ ही इज फीलिंग really confused, and this middle condition in which he is there, and he is not able to get out of it. ना ही उनकी बेटी खुश है उनकी स्टोरी सुन के, और ना ही उनकी वाइफ इज़ वेरी मच हैप्पी बिकॉज ही डजेंट वांट टू हेल्प हर। ही इज़ वेरी मच कंफ्यूज। उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। वो जिसको बोल भी नहीं पा रहे हैं, ही इज़ नॉट एबल टू टेल हिज वाइफ, बट ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम हर। ओके, सो ये मिडिल पोजिशन जो है, ये जो उनकी मेंटल स्टेट है, दिस इज वॉट इज बींग आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन नंबर 4. Okay, so moving on to question number 5. What is your stance regarding the two endings to the Roger Skunk story? So the question is to the readers, to you. Okay, so हर किसी की अपनी सोच होती है, हर किसी की अपनी एक एज का एक एक्सपीरियंस होता है. सो आप किसी भी एज में हैं, आप उसके हिसाब से सोचेंगे. सो यू आर बीइंग आस्क्ड कि इस स्टोरी में जो 2 एंडिंग्स दी गई हैं, आपको कौन सी एंडिंग ज़्यादा पसंद है, आप कौन सी एंडिंग के साथ रहना चाहेंगे. ओके, एंड सो यू हैव टू राइट डाउन व्हाट यू थिंक इज करेक्ट. Okay, so there is not much to say in what is your perspective. It is for you to decide. So moving on to question number 6. Why is an adult's perspective on life different from that of a child? Now this is a very interesting question and important as well. एक अडल्ट का जो लाइफ के प्रति जो नज़रिया होता है, वो एक चाइल्ड से डिफरेंट क्यों होता है, ये इसमें पूछा जा रहा है. सो जनरली वी नो it is also a very easy question because we all know the difference between children and adults. जो अडल्ट जो होते हैं, उनकी पर्सपेक्टिव जो होती है, उनके जो सोचने का जो नज़रिया होता है या चीज़ों को देखने का जो नज़रिया होता है, वो किसके थ्रू गाइड होता है. इट इज़ गाइडेड बाय एक्सपीरियंस. इट इज़ गाइडेड बाय द लेंस ऑफ एक्सपीरियंस. वो अपने एक्सपीरियंस, जो उनके जितने भी साल उन्होंने गुजारे, उसका जो एक्सपीरियंस रहा, उसके थ्रू, उसके लेंस के थ्रू वो हर चीज़ों को देखते हैं और सिचुएशंस को देखते हैं और उसी तरह एक्ट करते हैं. एंड दे सी एवरीथिंग इन अ वेरी प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ वे. ठीक है. जबकि जो बच्चे होते हैं, जो लिटिल चिल्ड्रन, जो बेसिकली जो हमारे आसपास जो बच्चे होते हैं, वो उनका क्या होता है, दे आर नॉट वेरी मच एक्सपीरियंस्ड. उन्होंने ज़्यादा दुनिया नहीं देखी होती है. दे डोंट हैव दैट विजडम जो बड़ों में होती है. ठीक है. और विजडम कैसे आती है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आती है. व्हेन यू एक्सपीरियंस थिंग्स इन लाइफ देन यू गेन विजडम. एंड स्लोली हम इसलिए बोलते हैं कि बूढ़े लोग जो होते हैं या जो एल्डरली पीपल होते हैं, दे आर rich in wisdom. Why? Because they have a lot of experience, they have seen the world and everything, and they are just very practical, and they know that which actions will lead to what results. Okay, so this is not something which a child has. ये पर्सपेक्टिव एक चाइल्ड में लैक करती है. बच्चों के अंदर ना विजडम होती है, ना प्रैक्टिकलिटी होती है, और ना ही बहुत ही वर्ल्ड का एक्सपीरियंस होता है. सो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं एक चाइल्ड के पर्सपेक्टिव में और एक अडल्ट के पर्सपेक्टिव में. सो इसकी वजह से उनकी एक्शंस भी अलग अलग होते हैं. बच्चे जो हैं वो बहुत हर चीज़ को बहुत इजी लेते हैं, इजी गोइंग होते हैं, एंड दे वांट अ हैप्पी एंडिंग टू एवरीथिंग. कि राजा रानी ख़त्म दोनों, लाइक दे हैड अ हैप्पी एंडिंग एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. सो दिस काइंड ऑफ स्टोरीज आर देयर इन चिल्ड्रंस बुक्स. ठीक है. जबकि बड़ों के नॉवेल्स में आपको ऐसी एंडिंग्स नहीं मिलेंगे. ओके, इतना लीनियर फैशन में कुछ भी नहीं मिलेगा. ये द अडल्ट नॉवेल्स, द नॉवेल्स ऑफ द एल्डर पीपल, उनकी स्टोरी कैसी होती है, लाइफ की तरह होती है. जैसे लाइफ हमारी कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे लाइफ कंफ्यूजिंग होती है, जैसे लाइफ का कोई एक स्पेसिफिक बिगिनिंग, स्पेसिफिक एंड हम नहीं कह सकते हैं सिचुएशंस के हिसाब से. सो उसी तरह हम अडल्ट्स की बुक्स होते हैं, अडल्ट्स वैसी चीज़ों को समझते हैं, लेकिन बच्चों के लिए चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन अडल्ट्स पर्सपेक्टिव एंड अ चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ. और ये दोनों पर्सपेक्टिव के क्लैश
हम इस स्टोरी में देखने को हमें मिलता है कि कैसे ये दोनों पर्सपेक्टिव्स में क्लैश हो रहा है एक फादर और एक डॉटर के बीच की कॉन्वर्सेशन में. ओके, so this was what was there for the question and answers in your book. There can be more questions and there can be more answers as well. So it is up to you to make more questions if you like, and give the answers yourself. And I request you to read the chapter. Please read the chapter, because nothing can substitute the reading of chapters. Okay, the reading of the main text and by you. आप जब तक चैप्टर को खुद से नहीं पढ़ेंगे, कोई भी टीचर आपको चैप्टर नहीं समझा सकता है. बिकॉज टीचर का जो पढ़ाना होता है वो एक सप्लीमेंट होता है, वो आपके लिए एड ऑन होना चाहिए. ओके, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको खुद से डेवलप करनी होगी. ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. And in the next lecture, we will start with a fresh chapter, hopefully. So, until then, take care of yourself. Thank you and see you.